Okay, let's continue the applications of Maxwell relations. So the next one is the Clausius-Clapeyron equation. By the way, these are two scientists. The Clapeyron already derived this equation without the help of Maxwell relations, using the Carnot engine and all the Carnot theorem. But later on, when Maxwell equations were there, the Clausius also derived the same equation. Hence, these two scientists' name is involved here in this equation, Clausius-Clapeyron equation. So, what does it equation tells? This is one of the most important equation in thermodynamics. First of all, you need to understand this point. It tells us that before that, let's see when this equation comes into consideration. हम इसकी बात कब करते हैं? So whenever there is a change of phase. Okay, phase means क्या होता है वो भी बताएंगे. We will tell you the meaning of phase. So जब कभी भी phase का change होगा, either it is from liquid to gas, or it is from solid to gas, or solid to liquid. So there are multiple phase changes, right? So जब phase change होगा, this equation will tell us कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पे वो फेज चेंज होगा. फाइन. कि लाइक यू मस्ट हैव हर्ड दैट the boiling point of water is 100 degrees Celsius, right? But that is incomplete thing. The claim is incomplete. Similarly, you must have heard that, you must have read from your childhood, the melting point of ice is 0 degrees Celsius, right? So again, this is a incomplete statement. This claim that you are making is incomplete. So why I am saying this incomplete? Because this temperature, this particular temperature at which the phase change occur, is dependent on the pressure around that system, pressure acting on that system, to be precise. So जो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्लॉसियस क्लैपरॉन इक्वेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर. सो व्हाट डज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द इक्वेशन. व्हाट दिस इक्वेशन टेल्स, डी पी बाई डी टी equals L upon T times V2 minus V1. We will see what is the meaning of all these quantity I have written here. But you can see that this P is the pressure, T is the temperature, and how this pressure and temperatures are related, you can figure out from here, right? This is nothing but a differential equation. With the help of this differential equation, you can figure out what is the pressure and what is the temperature. An important thing is that this is not a random pressure, not a random temperature. This is also important. Okay, so we will see all these things, but I'm just giving right now what is the motivation regarding this Clausius-Clapeyron equation. Fine. So I have set the theme. So let's see. Let's start from very basic things. What do you mean by phase? A system which is homogeneous. Now what do you mean by homogeneous? Okay, homogeneous in its physical structure and has fixed chemical composition. This is called phase. Then system is said to be in a phase. ठीक है. For example, we can take solid ice. ठीक. What does it mean now?
अगर सॉलिड आइस की हम बात करें तो इस सपोज इन दिस पॉट देर इज आइस. Okay, inside this pot there is ice. So at every point inside this pot, the physical structure is solid, right? Physical structure is solid, and at every location on this pot the physical structure is same, and also the chemical composition is same, right? Because it is ice, so it has to be H2O at every point in the bulk of the ice. So this is the meaning of chemical composition is same and physical structure is same. Similarly, the example can be you can take one example of liquid water. हर जगह पे उसका फिजिकल स्ट्रक्चर लिक्विड का ही है और केमिकल कंपोजिशन H2O है, राइट? और वेपर का जो गैसियस वेपर, तो वहाँ पर उसका फिजिकल स्ट्रक्चर गैस का है और कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन इज H2O, right? Okay, so we can write that these are the three phases of same chemical species, that is H2O. तो इसका मतलब ये हो गया फेजेस का मतलब. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. और मैनी टाइम्स इन बुक्स और पीपल टॉक अबाउट स्टेट. सो स्टेट और फेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. स्टेट इज यूज्ड only for physical appearance or physical structure. Like we can say it is in liquid state तो बोला, बट अब वो लिक्विड का केमिकल कंपोजिशन सेम है या नहीं है, नो गारंटी. आई वॉज सेइंग वारंटी. इट इज़ नो गारंटी दैट वो लिक्विड का जो अपीयरेंस है वो लिक्विड उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है या नहीं है. तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि वो स्टेट फेज है कि नहीं है करके. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड ऑयल, ठीक है. सो ऑफकोर्स पूरा का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर लिक्विड का है, बट वी डोंट नो कि वो पूरा का पूरा लिक्विड जो है उसका केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस है या नहीं है ना इस केस में. तो अब सो दिस इज लिक्विड स्टेट बट नॉट फेज. लिक्विड स्टेट but it has two different phases in it, ठीक है, क्योंकि दो different chemical compositions हैं. So this is the difference between state and phase. Now we need to understand few more concepts to before going to the Clausius-Clapeyron equation. First one is the vapor pressure, and saturated vapor pressure. Okay, this saturated vapor pressure is in short known as SVP. Okay, what does this mean? First of all, the name suggests, right? The name suggests vapor pressure. So there is vapor in the picture. Pressure is the normal pressure that we learn in your basic classes. There is a force acting on some object. तो vapor pressure का मतलब ये है कि in simple terms, in plain words you can understand the vapor pressure is nothing but pressure that vapor wants to establish. वेपर होगी और वो वेपर प्रेशर लगाना चाहती होगी, चाहे उसके आसपास कुछ भी हो, ठीक है. उसके आसपास लिक्विड हो सकता है, उसके आसपास सॉलिड हो सकता है. सो लेट मी राइट द डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल,
So initially vapor pressure is the pressure exerted by the vapor on the surface of its condensed state or phase, condensed phase. It can be a liquid और सॉलिड है. सॉलिड से भी वेपर बन सकता है और लिक्विड से भी वेपर बन सकता है, राइट. वो वेपर किसी न किसी ऑब्जेक्ट से बना होगा, राइट. किसी मटेरियल से बना होगा वेपर. सो उसी मटेरियल से जो वेपर बना हुआ है, उस वेपर के कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. और on the surface of its condensed phase called at a specific temperature in closed system. ठीक, ये तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हो गई. और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि this vapor pressure is the property of material. ठीक है, and mainly depend on temperature. ठीक है, वो जो मटेरियल है, मटेरियल किस टेम्परेचर पे है हमारा, उस पर डिपेंड करता है. और भी एक आधी फैक्टर्स हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, बट वी आर नेग्लेक्टिंग देम, लाइक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द मटेरियल, but that is not our scope of study right now. So okay, so let's understand it in better way. So suppose we are in the room temperature, and there is a container which is closed with the piston. Okay, so now at t equal to 0, this is completely empty. There is nothing inside this, not even the gas molecules or the air molecules, not at all. So it's like a vacuum inside it. So right now there is no pressure because nothing can hit the walls of the container, so no pressure, so no vapor pressure. Now after some time at t equal to 2, I just pour some water inside this container, that is this green color some liquid. It doesn't has to be water, but any liquid. So what will happen at room temperature only, according to Maxwell's distributions of velocity or speed, you know that some particles inside this water will have such a velocity that it can break free from the intermolecular attraction in the liquid, right, liquid molecules. So कुछ particles room temperature में भी इससे ऐसे निकलना स्टार्ट कर देंगे. दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. when the liquid converts into the water molecules, sorry, when liquid converts into the vapor molecules at normal temperature, that is called evaporation, right? So now see, these are the vapor molecules, and of course these vapor molecules are again moving on the free space, since it can't escape from this container because this is closed container. So these molecules can randomly move around all directions, right, all possible directions. So when they collide, so some of them will again come back into the liquid, right? So when they are coming back, maybe suppose at initial time, suppose 100 molecules are evaporating per second, right? And out of 100, suppose 20 are coming down to the surface of liquid, that is called
इवेपोरेशन का ऑपोजिट क्या होता है? कंडेंसेशन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, सॉरी इवेपोरेशन। जब आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सो पर सेकेंड सपोज 100 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग दीज नंबर्स फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। इतने इवेपोरेट हो रहे हैं और इतने कंडेंस्ड हो रहे हैं, हाँ, कंडेंस, इवेपोरेटेड। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन कि दिस रेट विल बिकम इक्वल, okay, so let's deal with that later, but right now this is not equilibrium position, this is called this is called not equilibrium position, okay, fine. When this system is not in equilibrium, एंड इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? नॉट इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना? अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल नहीं है, यानी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड इवेपोरेट हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कंडेंस हो रहे हैं, उसका रेट जब इक्वल नहीं होता है, दिस pressure exerted by vapor is called vapor pressure, ठीक। ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद आया। नाउ आफ्टर सम टाइम, मे बी at, let's call it T equals T naught, after some time the rate of evaporation equals the rate of condensation. So now suppose 100 was going up and 100 will come down. So this is the situation of dynamic equilibrium. Sorry. And what does it mean? It means that this thing, let's copy and paste, when this system is not की जगह पे अब is in equilibrium, हाँ. So when the system is in equilibrium, that is rate of evaporation is equal to a rate of condensation. This pressure exerted by vapor is called saturated vapor pressure, saturated SVP. In short, we call it SVP. And this word saturated implies this thing. Saturated का मतलब ही है equilibrium is established. Rate of evaporation is equal to rate of vaporization. ये है saturated का मतलब. Now we generally हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की बात करते हैं। जब हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा उसको हमें, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम पे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे स्टडी करते हैं, तो हमेशा हम SVP की ही बात करेंगे। बट हम हो सकता है कि सैचुरेटेड वर्ड बार बार यूज़ ना करें, जस्ट वेपर प्रेशर बोले या फिर SVP थोड़ा बोलना आसान है, तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। बट डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि क्या डिस्टिंक्शन है। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, हालांकि इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है डेली लाइफ में विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स, बट स्टिल पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। ओके, तो अभी वेपर प्रेशर जीरो नहीं है, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर जीरो नहीं है। ऑफकोर्स let me give you some example at room temperature or at 25 degree. I have written down, maybe, yeah, this thing.
सो एट दिस टेम्परेचर, है ना, द SVP इज 3.17 Kelvin. And also remember one thing, that this VP और SVP rather, ओके, इसको बेहतर होगा कि हम यहाँ पे लिखें नीचे, बिकॉज हम हमेशा SVP की बात करेंगे. This SVP is the property of material and mainly depends on temperature. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का SVP ये है, और तो अगर हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो इसका जो SVP है वो बढ़ेगा 4.24 किलो पास्कल. और यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिकली थिंक अबाउट इट कि क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स की जो ये स्पीड है वो बढ़ेगी, और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वो कर्व था हमारा ऐसे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पे टू फोल्ड यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा. एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे और दूसरे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो ये दो चीज़ों में बड़ा इजाफा होगा. इन दो चीज़ों में जब इजाफा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, बैक रिबाउंड होंगे और ज़्यादा स्पीड से रिबाउंड होंगे, तो वो टू फोल्ड इंक्रीमेंट होगा. तो उसी कारण से ये बढ़ेगा. और थोड़ा सा और डेटा लें अगर हम, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे SVP becomes 101.32 किलो पास्कल. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये जो है ना कि टेम्परेचर के साथ SVP बढ़ना, दिस इज़ नॉट लीनियरली नहीं बढ़ेगा. कि अगर 5 डिग्री में सपोज कर लो इतना बड़ा है, तो सपोज ये डिस्टेंस डेल्टा है 5 सेकेंड में, तो अगले 5 डिग्री सेल्सियस में, तो नेक्स्ट 5 डिग्री सेल्सियस में भी इतना ही चेंज नहीं आएगा, ये डेल्टा नहीं होगा, ये समथिंग डिफरेंट होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन लीनियर चेंज. तो इंटरेस्टिंगली दिस इंक्रीमेंट और दिस चेंज, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इज गवर्न्ड बाय क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. ठीक है. सो लेट्स राइट इट हियर. द चेंज इन SVP with respect to temperature is not linear, rather governed by Clausius-Clapeyron equation. वन ऑफ द यूज है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का. इसको देखेंगे हम कि कैसे ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, घटता है. ठीक है. ओके. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इज दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. और वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फाइन. ओके. सो अभी तक जो हमने बात करी थी वो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करी थी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास, या फिर जब मैं लिक्विड बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बात लिक्विड की हो रही है. तो सॉरी, जब मैं वाटर बोल रहा हूँ तो बात हर एक लिक्विड के लिए वैलिड होगी, जो बात मैं वाटर के लिए बोल रहा हूँ. तो अब बात ये है कि जब हम टेम्परेचर को, लेट्स टेक टेम्परेचर एज 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पर जब हम बात कर रहे थे, तो हमने बोला कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ही इवेपोरेट हो सकते हैं और प्रेशर फिक्स हो जाएगा, SVP इज फिक्स्ड. लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद
इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो बल्क के मॉलिक्यूल्स थे अंदर, जो इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स थे, उनके इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो लिक्विड फेज में थे वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ पर भी वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी। सो सपोज जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसको अगर तुम देखो तो ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस लिक्विड और गैस को सेपरेट कर रहा है, और यहाँ सारी की सारी लिक्विड है और यहाँ पे वेपर है। अब एक टेम्परेचर के बाद इनकी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, अगेन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कुछ मॉलिक्यूल्स सपोज कर ले, इतने मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी हो गई है कि ये सारी की सारी गैस बन गई है ना। लेट्स डिनोट इट दिस पार्ट, इतना इसको बोलते हैं कैविटी, और वेपर पॉकेट बोलते हैं इसको, समझने के लिए वेपर पॉकेट। ठीक, अब ये जो वेपर पॉकेट है, पॉकेट क्यों बोलते हैं कि ये इतना एरिया इसने ट्रैप कर लिया और वेपर इसके अंदर वेपर है, क्योंकि इतना पार्ट वो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया है। और क्योंकि इनकी स्पीड बहुत है, तो ये जो वेपर यहाँ पर प्रेशर लगाएगा आप, क्योंकि इसके अंदर वेपर है, तो वेपर ऐसे जो इस पॉकेट में जो प्रेशर लगाएगी, वो प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होगा उस टेम्परेचर पे। ठीक है, पहली बात। अगर ये प्रेशर अब जो है, इसके आसपास का जो प्रेशर है, ये जो एक तो प्रेशर किससे आएगा, हाइट से आएगा, डेप्थ से, रो जी एस वाला, और जो एक एटमॉस्फेयर से आएगा पूरा। तो जो प्रेशर ऑफ रो जी एस है प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है, प्लस एक प्रेशर और आएगा तुम्हारा सरफेस टेंशन की तरह, क्योंकि इसका जो कर्व से शेप है उसकी तरह से आएगा। ये जो तीन प्रेशर है, अगर ये प्रेशर और ये सब प्रेशर इसको स्क्वीज़ कर रहा है, इसको दबा रहा है ऐसे, लेकिन इसके अंदर की जो वेपर है, वो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है इस प्रेशर को काउंटर बैक कर रहा है, राइट। अगर ये प्रेशर, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ वेपर प्रेशर की तरह लिखता हूँ, जो गैस जो उसके अंदर फील्ड है, इस वेपर पॉकेट के अंदर फिक्स है, अगर ये इसके बराबर है, इक्वल हो गया, तो ये जो वेपर पॉकेट है अब ये ऊपर को, क्योंकि अब ये फूटेगी नहीं, फूटेगी मतलब यहाँ पर जो है, क्योंकि अगर प्रेशर इसका ज़्यादा है तो ये इसको बाहर के प्रेशर को ओवरकम कर जाएगा, तो ये अब ऐसी बनी की बनी रहेगी यहाँ पे। अब ये इट विल इंटैक्ट, राइट। और बॉयंसी के कारण ये ऊपर को ऐसे फ्लोट करेगी अब, क्योंकि बॉयंसी का क्या होता है, मतलब बॉयंसी है कि वो उतना फोर्स लगाती है जितना कि उसने यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया उसके वॉल्यूम के इक्विवेलेंट। तो अभी ऐसे ऊपर को डिस्प्लेस होगा। देखा भी होगा जैसे जैसे हम पानी गर्म करते हैं किसी कंटेनर में, तो वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो ऐसे ऊपर सरफेस पे टकराते हैं, ऐसे छोटे छोटे बबल्स। ठीक है, जैसे ही वो सरफेस पे टकराते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि वो बर्स्ट कर जाते हैं, और बर्स्ट करते ही इनके अंदर की जो वेपर थी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, नाउ बात ये है कि ये होता कब, वो कौन सा पॉइंट आता है कि जब यहाँ पर अंदर बबल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि कौन से पॉइंट्स पे वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज दिस थिंग। ओके, लेट्स look at this point. When the vapor pressure of vapor equals the atmospheric pressure, क्योंकि और जब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा हूँ तो इसके आसपास का सारा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, या फिर जो इसकी डेप्थ के कारण आ रहा है रो जी एच, क्योंकि ये इतने कम होते हैं कि इसको हम नेगलेक्ट, ये और ये इतना कम होता है इसके रिस्पेक्ट में कि हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए एटमॉस्फेयर बोला हुआ है। When the vapor pressure of vapor equals the atmospheric pressure, vaporization starts, and at that temperature at that point is called boiling point temperature. ठीक है, this is the meaning of boiling point. Now ये जो हमने डिस्कशन किया, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपर प्रेशर की दूसरी डेफिनेशन आती है, SVP। मैंने बोला था कि अगर मैं वेपर प्रेशर बोलूँ तो आपसे उसको SVP समझना। तो SVP की एक यहाँ से बहुत सुंदर डेफिनेशन आती है जो तुम्हें ट्रिगर करेगी, तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा बहुत बोल दिया है।
बोल दिया मतलब समझा दिया कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो बात, ठीक है। लेट मी राइट इट। सो वेपर SVP represents the tendency of the liquid to turn into vapor. ये लिक्विड होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी सॉलिड एज वेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मीन्स let SVP equals suppose some number 70 kilopascal at some temperature T equals, और लिक्विड कोई भी होता है मुझे नहीं पता, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अब ये सिचुएशन है, और अगर तुम अब एटमॉस्फेयर के यानी कि इसके आसपास के जहाँ पर लिक्विड रखा हुआ है वहाँ के प्रेशर को इसके बराबर ले आओ, ठीक है, तो ये इवेपोरेट कर देगा टेंडेंसी, क्योंकि हर एक लिक्विड पे जो अगर तुम केमिस्ट्री की लैब में जाओगे तो हर एक लिक्विड के साथ उसका SVP लिखा होगा, ठीक है। तो और टेम्परेचर भी लिखा होगा ऑफकोर्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग में तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। दिस इज़ वाई इट रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, क्योंकि SVP का मतलब ये है कि इसके जो बल्क में जो पार्टिकल्स थे वो बबल बनना स्टार्ट, और इस टेम्परेचर पे वो जो बबल बनाएंगे वो बबल का प्रेशर इतना होगा, और अगर बाहर का प्रेशर भी इतना या इससे कम है तो वो इस प्रेशर को ओवरकम कर जाएगा और सीधे उठ के एनवायरनमेंट में चले जाएगा। दिस इज़ द कोर अंडरस्टैंडिंग और इंट्यूशन ऑफ SVP एंड वेपराइजेशन। और यही जो डेटा है ना, ये टेम्परेचर और प्रेशर का, यानी कि दिस थिंग वेपर प्रेशर और T टेम्परेचर का यही रिलेशन, और रादर डायरेक्टली तो नहीं, डायरेक्टली तो कुछ और देता है वो, यही रिलेशन हमें कहाँ से मिलता है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से मिलता है, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्यों ज़रूरी है पढ़ना। अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया, टॉपिक तो वो था हमारा, बट ये जो पूरी मैं थीम सेट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, सो आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग क्लियर नाउ। एक और चीज़ समझना कि ये जो वेपर प्रेशर की हम जितनी भी हमने बात करी हुई है ना, ये हमेशा बात तभी होगी जब हमारे पास दो फेज ऑफ सेम मटेरियल सिस्टम में होंगे, राइट। अगर सपोज एक कंटेनर है उसमें बस गैस ही गैस है तो वी कांट टॉक अबाउट वेपर प्रेशर, राइट। वेपर प्रेशर जो है वो दो फेज जब सिस्टम में होंगे तब काम करता है, यानी कि को एग्जिस्टिंग फेजेस जब सिस्टम में होंगे तब काम करेंगे, और उनमें से एक फेज वेपर को होना पड़ेगा।